Welcome to everyone. Welcome to another lecture of my YouTube channel, which is named as B. Chemistry. Myself Bishwajit Pal. The channel named as B. Chemistry goes to the subject, the area of different topics, different modules in chemistry. In my previous video, I already explained in this channel we are going to have some depth discussion in the subject, in the area of chemistry. In my channel there are two parts. Now number one is about chapter wise lecture regarding various subject of physical, organic and the inorganic portion, as well as we have another JEE Mains Solve Paper portion. Not only JEE Mains Solve Paper portion, there are several competitive exams that are held in India, centralized or the set wise. We will go each and every exam that coming to our area or coming to our scope. We will discuss each and every one exams question paper day by day by having this kind of solve paper. Here we are going to have the JEE Mains Solve Paper memory based part of the 2nd September 2020 afternoon session part 2. In my previous video I explained the part 1 portion in which we discuss about 10 to 11 questions, and the video lecture become a little bit long, and that's why I suggest to have the video lecture in a skip mode format, जहाँ पे तुम पॉज करके धीरे धीरे करके वो चीज़ को देखो, उसके बाद ही तुम्हें वो चीज़ अच्छा लगेगा. But if you want to know about the knowledge, if you want to increase your concept, then that video lecture should be beneficial to you. And वो वीडियो लेक्चर जहाँ पे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों चीज़ों को एक साथ सम किया गया है, आई थिंक दैट इज़ वेरी यूनिक वन, एंड आई थिंक इट विल बूस्ट अप योर कॉन्सेप्ट वेरीफाइडली. I hope the video that we have in my YouTube channel, everything is helpful to you, it's beneficial to you and it's knowledgeable to you. सो माई चैनल नेम इज़ B. Chemistry. अगर अच्छा लगे जो वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ तो उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्त लोगों के साथ, जूनियर लोगों के साथ, एंड प्लीज़ लाइक इफ़ द वीडियो इज़ बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल टू यू. सो एज आई एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो, हम लोग यहाँ पे एक नया एक कम्युनिकेशन मोड यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट्स वाई वी हैव अ न्यू फेसबुक चैनल विच इज़ नेम्ड एज B. Chemistry. यहाँ पे ऊपर उसका लिंक यानी कि ये पीपीटी के ऊपर उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस दिया गया है. इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन होगा मेरा चैनल का, ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पे आई विल सप्लाई एवरी डिटेल्स अबाउट माय यूट्यूब चैनल, अबाउट माय फेसबुक आईडी, अबाउट माय फेसबुक एड्रेस एंड सो ऑन, जहाँ पे उस लिंक को क्लिक करके यू कैन गो थ्रू टू माय फेसबुक पेज. As I explained, my Facebook page goes to several competitive exam questions in a daily format. We have several modern and the advanced science innovation vlogs, and obviously the exam updates which are very important for any kind of aspirants for class 11 as well as the class 12 portions. So ज़्यादा समय नष्ट मत करके we will have our today's lecture, that is JEE Mains Solve Paper memory based part of 2nd September 2020 afternoon session part 2. अभी तक तुमने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक होगा, गो फॉर इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. So let's start our today's topic. So the first question that we have, it's a pretty good questions. Very good question, that is we have to find out acidic strength by having 4 protons. यहाँ पे एक है that is D, यहाँ पे एक है that is H, यहाँ पे एक है और एक H, और यहाँ पे एक है और एक H. मतलब यहाँ पे कितना H है, that is you have number of hydrogen that you have, that is equal to 4. So you have 4 acidic hydrogen. Okay, now the question will come that when you have an acidic hydrogen, which one is more acidic, which one is less acidic. और वही का क्वेश्चन हमें बोला गया है कि फाइंड आउट द एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर द इन द फॉलोइंग कंपाउंड, कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है टू शो द एसिडिटी ऑफ दैट सर्टेन कंपाउंड. नाउ द पॉइंट इज विच हाइड्रोजन विल गो इजी इन अ इजियर वे, और कौन सा वाला हाइड्रोजन होगा जो फास्ट रिलीज होगा. ओके, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, मतलब ABCD में एक ऑर्डर निकालना है. Okay, that's a pretty simple one.
ए बी सी डी में एक ऑर्डर निकालना है जहां पे ये दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी. It's a very good one. Now the question is, when you have carboxylic acid, in between, if I have the question about carboxylic acid has a pKa value of 4.74. okay, carboxylic acid has a pKa value of 4.74, roughly 5 ही पकड़ लो. When you go for the OH underivative, obviously phenol system, okay, phenolic system, it has a value of approximate 10, and when you go to the acetylene part, that is acetylene hydrogen CH, it will something belongs to around 25. okay, now the portion is, if you go for the pKa value, as we know that the pKa value is inversely proportional to, मतलब pKa value जितना कम होगा acidity कितना होगा उतना ज़्यादा होगा, तो it's inversely proportional to the acidity of the system, because pKa is something represented as minus log of Ka, मतलब K का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, K का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, pK का वैल्यू उतना कम होगा, because you have a minus sign there, and that's why, which is K, that is something represented as dissociation constant of an acid. So pK is inversely proportional to the acidity part. जितना acidity ज़्यादा होगा, pK value उतना कम होगा. उसके accordingly, if somebody asks about the order between the carboxylic acid, between phenolic OH and the acetylene CH, that is acetylene hydrogen, so which one should be mostly acidic in nature? There should be carboxylic acid, that is named as acid, जिसको नाम के साथ acid जुड़ा हुआ है, so it should be the carboxylic acid. Then you have the OH as our portion, and then we have the acetylene hydrogen. okay, so इसके accordingly option C should be the correct one. It should be the highest acidity order. Then we will go to the option B or A, I didn't know that part. Then we will go to the part of D, मतलब D सबसे लास्ट आएगा, इसके पहले C आएगा, लास्ट में क्या आएगा D. A और B इसके बीच में आएगा, B A greater than B होगा या B greater than A होगा, I don't know that part. वही चीज हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेरीफाई करने वाले हैं, बिकॉज वेन यू हैव टू फेनोलिक OH रिगार्डिंग दैट कॉम्पाउंड, जैसे ये कॉम्पाउंड में है, सो फॉर टू एनोलिक OH देयर शुड बी डिफरेंट एसिडिटी, बिकॉज द एनवायरमेंट फॉर दिस टू एनोलिक OH आर नॉट द सेम वन, and when they are differentiated in their environment, that is a chemical environment that they have, then they should be different in their acidity portion. तो यहाँ पे वो चीज को पहले डील करते हैं. आई थिंक pK वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये चीज कैसे डील कर रहे हैं हम लोग, वो चीज आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन है, दैट शुड हैव बीन रिलीज इजीली. देन वी हैव द फेनोलिक हाइड्रोजन, देन वी हैव द एसिटिलिक हाइड्रोजन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू pK वैल्यू इट शुड बी रिप्रेजेंटेड दैट pK value is inversely proportional to the acidity of the substance. So pK value जितना ज़्यादा होगा acidity उतना कम होगा, pK value जितना कम होगा acidity उतना ज़्यादा होगा, because pK is something represented as minus log Ka. So Ka जितना ज़्यादा होगा pK उतना कम होगा. Now these all things are ready. We have to just choose between A and B, which one is stronger acid, which one is weaker. Okay, now the point is, if you look at the environment between this phenolic OH and this phenolic OH is, according to the phenolic OH, that is the B portion, you have a para NO2 as a substance, and when you go to the OH, that is the A position, you have a meta NO2 as a derivative one. Now the question will come, when you have a para NO2, when you have a meta NO2, which will shows more effect towards the phenolic OH to increase its acidity. Okay, now NO2 group is one of the most prominent group that we have, which shows a strong electron withdrawing effect, EWG. It has two effect, consequently minus R and the minus I effect, but the point is, when the difference between this NO2 and this OH or this OH is going to be too far from each other, then this kind of a minus I effect, that is the inductive effect, will not allow, बिकॉज बहुत ही वीक इफेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंगली, तो आई इफेक्ट विल नॉट इफेक्ट इन दैट पोर्शन. यहाँ पे कौन सा वाला इफेक्ट आएगा? द मेन इफेक्ट दैट विल कम इज कॉल्ड द आर इफेक्ट, दैट इज समथिंग कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट, बिकॉज रेजोनेंस इफेक्ट इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कंपेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट. सो रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा आएगा. लेकिन द क्वेश्चन इज, in which phenolic OH this resonance effect will fall strongly to have more acidity. Okay, now the point is, the minus R effect for the NO2 will heavily felt over the BOH, because
पैरा पोजीशन में अगर तुम NO2 का मतलब मान लो अगर तुम NO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो बाय हैविंग द माइनस आर इफेक्ट ऑफ द NO2 ग्रुप, कहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पे प्लस आता है. दीज आर द थ्री पोर्शन in which the plus charge is coming. Okay, it will come, the plus charge will come into that ortho and the para position. Okay, अगर तुम रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करोगे, I think you should understand the concept verifiedly. Now the point is when you have a para position substituted group, तो उसके ऊपर और ऑर्थो पोजिशन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, इन दोनों के ऊपर द इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द मेटा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप बिकॉज द प्लस चार्ज इजंट कमिंग इफेक्टिवली ओवर द मेटा पोजिशन. Okay, it isn't coming over the meta position heavily effectively, so the para and the ortho hydrogens or the ortho derivative groups that should be showing more acidity compared to the ortho product, because यहाँ पे जो O minus create होगा about the phenoxide ion, that ion stability matters. O माइनस आयन का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उतना एसिडिटी OH जो है मतलब हाइड्रोजन वो उतना इजीली छोड़ेगा. मतलब it is something represented like this. If you have a phenol, when it is releasing H plus, it is something looking like O minus. Now this is something called the phenoxide ion, and when you have the phenoxide ion, the stability of the phenoxide ion will represent that how much or how easily that OH will release. अगर NO2 पैरा पोजिशन में है, which will show a minus R effect strongly, the phenoxide ion will heavily stabilized compared to the meta position phenoxide ion. So as a result, the stability of the phenoxide ion will determine that which hydrogen is going to be more acidic and which hydrogen is going to be less acidic. And for that portion, the phenolic OH that belongs to the B1, okay, the para position one with respect to NO2 will show stronger acidity. Okay, hence the order of for the certain compound should be, C तो पहले ही ज़्यादा था, इसको लेकर कुछ मैं बोल नहीं सकता, उसके बाद B आएगा, then we have A and then we have D. This is our acidity order. तो जिन लोगों ने भी ये order लिखा है, that is the correct one to answer. I hope you understand the concept. Okay, so the R effect and the I effect, these are the two pretty interesting effects to explain any kind of compound acidity on the basicity. Now the point is the group that are showing this kind of electron donating or the withdrawing effect, the position of the group determine a pretty good order to explain that increasing basicity of that certain compound or increasing acidity of that certain compound. जैसे मैंने यहाँ पे बोला NO2 when is para position with respect to OH, it will show minus R effect towards it. मेटा पोजिशन के अकॉर्डिंगली मतलब जो OH यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंगली ये NO2 का कोई इफेक्ट आएगा नहीं, because it has a resonance structure which is something looking like this. Now the point is when the resonance structure is something looking like this, where the para and ortho position are electron more deficient, so the O minus should be stabilized more at the para and the ortho position, and as the amount of phenoxide ion stability will increase, the acidity will increase, and that's why we have the order which is something looking like this. बाकी का जो ऑर्डर था वो मैंने pK वैल्यू से इजीली एक्सप्लेन कर दिया. आई थिंक दैट्स अ प्रीटी इजी वन टू अंडरस्टैंड. अगर पीके वैल्यू याद नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर पीके वैल्यू का याद रखना पड़ेगा. आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज पीके वैल्यू उतना याद रखने की जरूरत नहीं. एक चीज हमेशा याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड है. सो व्हेन यू हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ एसिड पार्ट, जो बोला जा रहा है एसिड, फेनॉल इज नॉट अ एसिड, वैसे नहीं बोला जा रहा है. इट्स अ अल्कोहलिक कंपाउंड जिसको फेनोलिक बोल रहे हो बिकॉज इट हैज अ फिनाइल रिंग. सो कार्बोक्सिलिक एसिड शुड हैव मोर एसिडिटी कंपेयर टू फेनॉल. और उसके बाद फिर हाइड्रोकार्बन आएगा, बिकॉज हाइड्रोकार्बन आर नॉट दैट मच पोलर कंपेयर टू ऑक्सीजन, कंपेयर टू नाइट्रोजन, कंपेयर टू फ्लूरिन. सो हाइड्रोकार्बन एसिडिटी शुड बी लेस. तो इसके अकॉर्डिंगली ये चीज दिमाग में उतना रखने की जरूरत नहीं कि पीके वैल्यू याद रखना पड़ेगा या नहीं. आई थिंक तुम पीके वैल्यू के विदाउट हैविंग द पीके वैल्यू यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. बाकी डेरिवेटिव के अकॉर्डिंगली, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंगली बाकी चीज तुम्हें डील करना है. Okay, I hope you understand the problem. So it's a very good question that is coming 2nd September say afternoon session in the JEE Mains 2020 paper. Okay, so we'll go to the next question. So what is the next question? There is a dihalo compound, that is it can be classified as 1 2 3 4 5. So 3 bromo 2 fluoro pentane.
3-bromo-2-fluoropentane. It is going to be reacted with alcoholic KOH. Now the point is you have to find out the product. So alcoholic KOH is something represented where the source of OH minus, remember, where the source of OH minus is acting like a base. And when the source of OH minus is acting like a base, the reaction that is happening for that compound is something represented as elimination reaction. If it's acting as a nucleophile, then it should be a substitution, but when the OH minus is acting as a base, it should be a elimination reaction, and alcoholic KOH के लिए यही चीज होता है. Okay, तो उसके accordingly when you have this compound, you have to understand that which hydrogen, बीटा हाइड्रोजन, जैसे एलिमिनेशन को बोला जाता है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, दैट विच बीटा हाइड्रोजन रिगार्डिंग दिस हैलो ग्रुप और दिस हैलो ग्रुप विल रिलीज एंड यू हैव एन एल्कीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट, बिकॉज एलिमिनेशन को जो फाइनल प्रोडक्ट होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट शुड बी एल्कीन और एल्काइन, मतलब अनसैचुरेशन आता है कॉम्पाउंड में. Okay, so we have to figure it out that which beta hydrogen are you going to eliminate to have the elimination product. Okay, so when you have this compound, the first thing that come to our mind that which hydrogen is most acidic, because the thing is OH minus is acting here as a base and the hydrogen that will release, it will be entirely depend on that hydrogen acidity कि कितना easily वो OH minus से abstract होगा. Now there is 2 points. The number 1 point is when you have fluorine, okay, this hydrogen should be most acidic because fluorine is the most electronegative element that we have, and this hydrogen should be less acidic because bromine isn't that much electronegative. So hydrogen acidity के accordingly the carbon alpha hydrogen belongs to fluorine. Okay, it should be greater in acidity compared to carbon alpha hydrogen belongs to bromine. I think you understand the point. This is the big acidity order of that certain hydrogen. This is the first point. The second point is very interesting about the CF bond and the CBr bond. It between CF and the CBr bond, which bond has a greater bond length? Obviously CBr bond, because in the CBr bond the overlap is very poor. You have the पोर ओवरलैप पोर्शन बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन, जहां पे कार्बन का 2p इज गोइंग टू ओवरलैप ओवर ब्रोमीन 5p, और यहाँ पे कार्बन का 2p फ्लोरीन का 2p के साथ ओवरलैप करेगा. सो 2p ओवरलैप शुड बी मच मोर फेवरेबल. सो एज अ रिजल्ट द कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड शुड बी द स्ट्रॉन्गर वन कंपेयर टू द कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई दे हैव ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, that is in carbon bromine bond compared to the carbon fluorine bond. तो यहाँ पे 2 रीजन सपोर्ट कर रहा है कि कौन सा वाला हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे लेंगे. हम लोग ये वाला हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे चॉइस करेंगे. वी विल टेक दैट हाइड्रोजन अबाउट आवर फंडामेंटल थिंग टू हैव द एल्कीन एज आवर प्रोडक्ट. तो यहाँ पे ये चीज को मैं और एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ बहुत सही तरीके से देख लो. ओके, नाउ द पॉइंट इज यू हैव अल्कोहलिक KOH which is a source of OH minus. If you have this bromine as a alpha, as a functional group, this is the alpha carbon that we have, then this is the beta carbon that we have. ये भी बीटा है लेकिन इसका एसिडिटी, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जो हाइड्रोजन इसका एसिडिटी ये वाला हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा, बिकॉज यहाँ पे फ्लोरीन अटैच्ड है. सो दिस बीटा हाइड्रोजन शुड बी एब्स्ट्रक्टेड. फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बीटा नहीं, ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में बीटा, बिकॉज always remember for the elimination it is something looking like this. You have a beta hydrogen, you have a halogen. Beta hydrogen यहाँ पे abstract होगा, the halogen will leave and you have a product which is something looking like this. Okay, so for the same purpose, for the same reason, we will abstract the beta hydrogen with respect to bromine and it will leave and you have a product which is something looking like this. यहाँ पे एक CH3 होगा. आई डोंट थिंक दैट इज मच मोर अफोर्डेबल. सो यहाँ पे ईच हाइड्रोजन देते हैं. सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी हैव अबाउट द एल्कीन दैट वी हैव. अगर क्वेश्चन आता है कि सर ये वाला कौन सा मैकेनिज्म से जाएगा ये एलिमिनेशन, बिकॉज एलिमिनेशन का बहुत पार्ट है. सो ये वाला जो जाएगा वो फॉर द E2, बिकॉज E1CV हम लोग यहाँ पे ज़्यादा अलाउट नहीं कर रहे हैं, E2 ही अलाउट कर रहे हैं. एक्चुअली फ्लोरीन जब होता है E1CV का प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन है तो इसलिए एक स्टेप में ये कन्वर्शन हो जाएगा, बिकॉज ब्रोमीन विल लीव इजीली. ओके, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन. सो दैट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ आवर डिजायर प्रोडक्ट
जो एल्कीन होने वाला है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि कौन सा वाला हाइड्रोजन निकलेगा, दैट हाइड्रोजन विल लीव एज आवर बीटा हाइड्रोजन एंड दिस ब्रोमीन विल लीव एज आवर हैलोजन। सो यहाँ पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कौन सा वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड द सेकेंड वन इज विच बॉन्ड इज पोर। तो यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर लिखा है, दिस इज द ऑर्डर रिगार्डिंग द बॉन्ड लेंथ। So I hope you understand the concept that I am discussing with you. Okay, so this is the final product that we have about the alkene and ये था हमारा रिएक्शन, फाइंड आउट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ओके, तो जाते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन में, ऑर्गेनिक का ये वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे मैंने ज्यादातर क्वेश्चन ऑर्गेनिक का ही लिया है, सब नहीं लिया है बिकॉज सब क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगा, बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इंफॉर्मेटिव है, अगर तुम्हें पता है तो होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। ठीक है, जैसा मान लो डेटॉल का स्ट्रक्चर क्या है, पहले बता भी था, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस भी किया था मैंने एक लेक्चर में। ठीक है, जेईई मेंस का जो मैंने पहला वाला वीडियो बनाया था, ठीक है, जहाँ पे मैंने अराउंड 15 क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक होगा, एक बार उसको देख लेना। पहला वाला 2 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का मैंने बनाया था। तो जो भी है वहाँ पे डेटॉल का एक क्वेश्चन मैंने बनाया था। मुझे बाद में लगा कि वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज डेटॉल का स्ट्रक्चर अगर आता है एग्जाम में, इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर देन यू कैन आंसर इट, अगर नहीं पता है तो नहीं होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट का कोई मामला नहीं है, तो हम लोग वो वाला क्वेश्चन को ज़्यादा स्किप करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगेगा उसी को हम लोग ज़्यादा डील करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक दैट शुड बी मोर बेनिफिशियल टू यू टू अंडरस्टैंड, टू इंक्रीज योर कॉन्सेप्ट। ओके, सो जाते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन में, जो ऑर्गेनिक का भी एक दूसरा क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज दैट एक्सप्लेन, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में बनाया था, जहाँ पे आई थिंक वी हैव अ कॉम्पाउंड, आई थिंक C9 कुछ करके इथर था, जिसमें HI क्लीवेज करके मैंने कुछ उसका प्रोडक्ट बनाया था, एंड देन वी हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट आइडोफॉर्म टेस्ट, अबाउट समथिंग लाइक आई थिंक ए सिल्वर आइडेड वाइट प्रेसिपिटेट एंड सो ऑन। तो वो वाला क्वेश्चन ही एक बार ही आ रहा है, वही तरह का क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग डील करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O, दैट इज रिएक्टिंग विद अ ग्रिग्नार्ड, दैट इज CH3MgBr, गिव 2 compound, one is C and second one is D. Now there are information that are given for the C and D. For the C there is a negative iodoform test, for D there is a positive iodoform test, मतलब D रिस्पॉन्स कर रहा है, C नहीं कर रहा है। और लुकास टेस्ट जो अल्कोहल के लिए करा जाता है, फॉर दैट C का जो रिजल्ट है वो इंस्टेंटेनियस, मतलब बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, और D का जो रिजल्ट है वो 5 मिनट बाद आ रहा है। दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना है अबाउट C एंड D इंफॉर्मेशन दैट दे आर गिवन। द फर्स्ट वन इज आइडोफॉर्म टेस्ट, कि आइडोफॉर्म टेस्ट का रिजल्ट जो है वो क्या बोलना चाह रहा है। ओके, द कंपाउंड दैट वी हैव, उसके अकॉर्डिंगली जो भी अल्कोहल हमारे पास होगा उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अभी बोलोगे सर आपने अल्कोहल कैसे पकड़ लिया कि C और D अल्कोहल ही होगा, इस पॉइंट से पकड़ लिया बिकॉज यहाँ पे लुकास टेस्ट दिया गया है। लुकास टेस्ट अल्कोहल के लिए किया जाता है। 3 डिग्री का इंस्टेंटेनियस प्रेसिपिटेट आता है, मतलब इंस्टेंट प्रेसिपिटेट आता है। D का आता है थोड़ा लेट में, और सॉरी 3 डिग्री का इंस्टेंट आता है, 2 डिग्री का थोड़ा लेट में आता है, और 1 डिग्री का आता नहीं है लुकास टेस्ट में। फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी अल्कोहल identification test is Lucas test. Okay, that's why I totally agreed that C and D should be an alcohol. तो जाते हैं C3H6O का स्ट्रक्चर करने के लिए। पहले मैंने बोला था कि जो भी चीज तुम्हें बोला जा रहा है उसको पहले समराइज करो, क्या बोला जा रहा है। C3H6O का 2 फॉर्म है, एक है कॉम्पाउंड A और दूसरा है कॉम्पाउंड B। ओके, कॉम्पाउंड ए के लिए क्या बोला जा रहा है, कॉम्पाउंड ए के साथ ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन किया जा रहा है, दैट इज CH3MgBr, और कॉम्पाउंड बी के साथ भी किया जा रहा है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन CH3MgBr। यहाँ पे खाली CH3MgBr दिया गया है, थोड़ा वहाँ पे गलत था, ड्राई ईथर देना था, बिकॉज ग्रिग्नार्ड ड्राई ईथर के अलावा रिएक्शन नहीं करता है, तो ड्राई ईथर यहाँ पे कॉम्पल्सरी है। और दूसरा चीज जो यहाँ पे कॉम्पल्सरी है वो है H3O+। ओके, H+ यहाँ पे कॉम्पल्सरी है टू मेक द अल्कोहलिक थिंग। यहाँ पे पकड़ लो, जो भी आ रहा है ये C दे रहा है और ये दे रहा है D, और C के अकॉर्डिंगली ये वाला क्या दे रहा है, ये वाला दे रहा है आइडोफॉर्म का टेस्ट। अगर मैं बताता हूँ तो आइडोफॉर्म का टेस्ट क्या दे रहा है, ये दे रहा है नेगेटिव रिजल्ट, कुछ टेस्ट आ नहीं रहा है। D से आइडोफॉर्म का क्या आ रहा है, D से आइडोफॉर्म का आ रहा है पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, और एक है लुकास टेस्ट का जो टेस्ट है, वो लुकास टेस्ट का क्या रिजल्ट आ रहा है, लुकास टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है कि यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट आ रहा है जो इंस्टेंटेनियस प्रेसिपिटेट है, और यहाँ पे D से भी जो लुकास टेस्ट है वो लुकास टेस्ट से 5 मिनट बाद एक प्रेसिपिटेट आ रहा है।
यहाँ पे इंस्टेंट आ रहा है, यहाँ पे 5 मिनट बाद प्रेसिपिटेट आ रहा है। तो दिस इज द होल समरी दैट वी हैव। ओके, इसके बाद हम लोग इसको फॉरवर्ड करेंगे कि C3H6O का प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। देन वी विल गो टू द पार्ट दैट व्हाट शुड बी द अल्कोहल दैट वी हैव, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर आएंगे। ओके, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, यहाँ पे ए और बी को आइडेंटिफाई करेंगे और सी और डी को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। मेरे पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था कि कौन सा वाला को बोला गया था आइडेंटिफाई करने के लिए, मैं दोनों को ही यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ। ओके, एज आई एक्सप्लेन टू यू, दिस इज अ मेमोरी बेस्ड पार्ट, यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ देख लेना। ओके, चलो, तो हमारे पास जो कॉम्पाउंड है उसका नाम है C3H6O। C3H6 को जो dV वैल्यू होगा, वो dV वैल्यू पहले हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। क्या होगा, हाफ ऑफ 2N4 माइनस N1 प्लस N3 प्लस 2, कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है 2 इंटू N4, 2 इंटू N4 तो 3 आ रहा है, N1 का 6 है, N3 यहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 1। मतलब यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड है, यहाँ पे रिंग होने का चांस नहीं है, बिकॉज 3 कार्बन से रिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और वही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो लेट वी हैव टू प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स। ओके, नंबर 1 प्रोबेबल स्ट्रक्चर दैट वी हैव, जो दिखने में कुछ ऐसा है। ओके, भाई बोलोगे सर आप तो बता दिए, हम लोग कैसे करेंगे? तुम लोग भी कर सकते हो रिवर्स में जाके। अभी रिवर्स में जाके मैं अगर मैं समझाऊँ तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं फॉरवर्ड में जाके करता हूँ, उसके बाद मैं इसका रिवीजन कर दूंगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। तो इसका पहले रिएक्शन हो रहा है ग्रिग्नट के साथ, तो ग्रिग्नट का रिएक्शन होने के बाद ये क्या होगा, ये दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। यहाँ पे OH होगा, 2 स्टेप है वहाँ पे, जैसे मैंने बोला था, 1 नंबर पे ग्रिग्नट और 2 नंबर पे क्या है, H2O+। उसके बाद ये आ रहा है ऑब्वियसली, यहाँ पे भी वही है, अलग कुछ नहीं है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। यहाँ पे ये जो अल्कोहल है देखने से ही पता चल रहा है ये 3 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पे जो अल्कोहल है इट इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। नाउ द क्वेश्चन इज, ये आइडोफॉर्म दे रहा है। आई थिंक वी हैव द थिंग दैट वी हैव, ये ए है, पकड़ लो। और आई थिंक ये वह कौन सा वाला है, ये है ए से क्या आ रहा है, ए से सी आ रहा है। ठीक है, अगर ए से सी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ आइडोफॉर्म नेगेटिव आ रहा है, लुकस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये तो 3 डिग्री होगा। ठीक है, इसके साथ लुकस टेस्ट 5 मिनट में आ रहा है और ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे रहा है, तो इसका मतलब ये 5 मिनट्स बाद में आ रहा है, तो ये 2 डिग्री होगा। मतलब जो 2 डिग्री अल्कोहल हम लोग ने प्रिपेयर किया है दैट शुड बी डी। वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है बी से, और सी कहाँ से आ रहा है, सी आ रहा है ए से। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पे, तो ये हम लोग क्या होगा, दिस शुड बी आवर सी जो ए से प्रिपेयर हो रहा है, सॉरी, और ये होगा हमारा डी जो कहाँ से प्रिपेयर हो रहा है, जो प्रिपेयर हो रहा है बी से। ओके, अभी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लुकस टेस्ट तुम डालोगे, तो लुकस टेस्ट का जो प्रोसीड्यूर है वो SN1 पाथवे फॉलो करता है। ओके, और SN1 पाथवे फॉलो करने के बाद यहाँ पे जो CCl बॉन्ड करके जो चीज़ होता है, ओके, एक हेलो कंपाउंड क्रिएट होता है बाय फॉलोइंग द SN1 पाथवे, ओके, हैविंग द रिएजेंट ऑफ ZnCl2 और HCl दिए करके। तो ये चीज़ यहाँ पे जो होता है, ये चीज़ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग तरीके से होता है। एंड द थिंग इज, ये जो चीज़ है ये प्रेसिपिटेट के तरह आता है, एंड एज द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द SN1 पाथवे। ओके, सो 3 डिग्री का जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज SN1 का जो पार्ट है वो है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री द रिएक्शन रेट। तो 3 डिग्री इंस्टेंटेनियस प्रेसिपिटेट डालेगा। और दूसरा बात यह है कि यहाँ से अगर तुम आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए जाते हो, तो यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए जो चीज़ मैंने पहले लेक्चर में भी बोला है, इट शुड कॉन्सिस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन। वो कैसे पता चलेगा, इसका ऑक्सीडेशन करो। इसका ऑक्सीडेशन में कोई एल्डिहाइड भी नहीं आएगा, कोई कीटोन भी नहीं आएगा, बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी प्रिपेयर नहीं होता है। और जब एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी प्रिपेयर नहीं होता है तो हैलोफॉर्म होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो पूरा नील, मतलब 0 हो जाता है। तो ये तो हैलोफॉर्म टेस्ट में कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और अगर हम लोग आते हैं ये 2 डिग्री के बारे में, 2 डिग्री का जो SN1 रेट है वो थोड़ा कम है, इसके अकॉर्डिंगली ये प्रेसिपिटेट जो आएगा ये 5 मिनट बाद आएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं इसका हैलोफॉर्म टेस्ट, मतलब आइडोफॉर्म के बारे में, अगर तुम इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो ये दिखने में कैसा लगेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, जहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन को डिहाइड्रोजिनेशन किया जा रहा है।
Okay, so when you have this compound, it has 3 alpha hydrogen present in that certain compound, so it will show positive iodoform test. Okay, and when it is showing a positive iodoform test, that means our result that having that compound C3H6O is totally satisfied. तो यहाँ पे दो आइसोमर लिया गया है जो ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल आइसोमर है, एंड फॉर द स्ट्रक्चरल आइसोमर फंक्शनली बता सकते हो बिकॉज एल्डिहाइड कीटोन अलग अलग है, तो फंक्शनल भी ये चीज हो सकता है. एंड यू हैव द कंपाउंड दैट इज ए, और डीबी वैल्यू 1 आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंगली डीबी वैल्यू 1 आ रहा है. एंड यू हैव this compound as your B, this compound as your A, this is as your C, and this is as your D. I hope it is helpful to you. ओके, तो यहाँ पे चारों कंपाउंड का हम लोग ने बात कर लिया अबाउट ABCD, जो हम लोग का क्वेश्चन था. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो उसके अकॉर्डिंगली एल्डिहाइड आ रहा है और कीटोन आ रहा है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन अबाउट सी और डी के बारे में दिया गया है, वो सारे चीज ये दोनों कंपाउंड, दैट इज द कंपाउंड सी एंड द कंपाउंड डी, आर सैटिस्फाइंग. सो दैट मीन्स दिस शुड बी द स्ट्रक्चर अबाउट बी एंड ए एंड ऑब्वियसली सी एंड डी. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, तो जाते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन में. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में हर साल आता है, नीट में भी हर साल आता है, एडवांस में थोड़ा एडवांस लेवल में आता है. यही क्वेश्चन, यही फॉर्मेट, एडवांस में थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आता है, लेकिन यही फॉर्मेट तुम्हें याद रखना पड़ेगा. पहले डीबी कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर ढूंढो जिसके अकॉर्डिंगली यू हैव द कॉन्सेप्ट जो भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है. जो ओबे कर रहा है पूरा चीज़, ओबे नहीं कर रहा है तो वो अलग बात है. और दूसरा चीज़ है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं था. एग्जाम में तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली भी तुम इसको वेरीफाई कर सकते हो. ओके, सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए आई हैव टू डिराइव ऑल ओवर द थिंग. तुम ऑप्शन देके भी ये चीज वेरीफाई कर सकते हो. ओके, सो जाते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4. ओके, दैट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज समथिंग रिप्रेजेंटेड. एक नाइट्रेशन हो रहा है यहाँ पे. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट. दिस इज अ नाइट्रेशन रिएक्शन जहाँ पे NO2 इंसर्ट होगा. नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, दैट इज द NO2 प्लस दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द HNO3 प्लस H2SO4. द पोजिशन दैट विल एब्स्ट्रैक्ट दैट NO2 प्लस. कौन सा वाला पोजिशन में NO2 प्लस एब्स्ट्रैक्ट होगा? ओके, जो भी पोजिशन में NO2 प्लस पोजिशन में जाएगा, दैट पोजिशन के अकॉर्डिंगली तुम्हें प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा. ओके, दैट इज द थिंग दैट दे आर आस्किंग टू यू. तुम्हारे पास ऑप्शन होगा, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बट दैट वाज आस्क्ड इन द जेईई मेंस 2020 2 सितंबर आफ्टरनून सेशन. ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है जिसके बारे में मैं ये क्वेश्चन लिया, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन उतना ज़्यादा लगा नहीं मुझे कि स्टूडेंट के लिए थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, फिर भी मैंने लिया वो स्टूडेंट के लिए जो लोगों का ऑर्गेनिक थोड़ा वीक है. ओके, सो द पॉइंट इज, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल. नाउ द पोर्शन इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ दिस सर्टेन 3 ग्रुप्स आर डिफाइंड. ओके, electron donating ability of this certain 3 groups will define the position of the NO2 that will attach to that ring. Okay, now the concept is, if you go into the electron donating ability, then OH has the highest electron donating ability because of oxygen. CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है एज वेल एज प्लस आई इफेक्ट, बोथ आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. और उसके बाद NO2 आएगा, बिकॉज NO2 तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होता है, तो ये तो चीज़ अलग है. So the electron donating capability, that is EDG, it should be in that order. Okay, now the concept is, जिसका electron donating capability जितना ज़्यादा होगा, वो इतना ये गरीब आदमी को पैसा देना उतना उसका easy होगा, because this is an electrophile. So the donating group which has greater capability to increase the benzene electron density, that is the part by which you can explain कि ये यहाँ पे आएगा और वो वहाँ पे आएगा. दिस NO2 शुड अटैच ऑन द पैरा और द ऑर्थो और नेचर और मेटा, और ये डिफाइन करेगा दिस OH, बिकॉज दिस OH हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी. सो रिगार्डिंग दैट, व्हेन यू हैव अ ग्रुप व्हिच इज शोइंग अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग effect,
जैसे प्लस आर या प्लस आई कुछ भी, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस आर है OH के पास, एट अ स्ट्रॉन्ग प्लस आर है, सो फॉर दैट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ऑकर फ्रॉम द ऑर्थो पैरा पोजिशन। कहाँ पे होता है? ऑर्थो पोजिशन में होता है और पैरा पोजिशन में होता है। ओके, द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दैट इज हैपनिंग एट द ऑर्थो पोजिशन एंड द पैरा पोजिशन। यहाँ पे दो पोजीशन है, देखो यहाँ पे OH के अकॉर्डिंगली दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, ये तो ब्लॉक है, और दूसरा वाला है पैरा पोजीशन जो खाली है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई वाला में जगह में NO2+ आएगा, कोई एक में, दोनों में नहीं, कोई एक में। नाउ देयर इज अनदर पॉइंट, यहाँ पे OH अगर NO2 अगर आता है तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का मामला होगा, जहाँ पे OH एक साइड में CH3 और दूसरा साइड में NO2 को लेके थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द OH ग्रुप शुड बी अ लिटिल बिट अनस्टेबल, बिकॉज दोनों साइड में अगर दो बल्की ग्रुप है तो दैट ग्रुप शुड बी अनस्टेबल। ऑर्थो में अगर दो ही बल्की ग्रुप आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली वो ग्रुप थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है रिगार्डिंग स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसका है? प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ये वाला पोजीशन का, और पैरा पोजीशन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही होता है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट, शुड बी OH, here we have a NO2, then we have another NO2, then we have a CH3. This is our product that we have regarding the structure of the compound. So it is a very good question, it is a very good question कि कहाँ पे तुम्हारा NO2+ attached होगा। Now this is the beauty of JEE Mains or the JEE Advanced and these kind of several competitive exam, जहाँ पे तुम्हारा concept check होता है, तुम्हारे अंदर क्या है, that is the important part। तुमने कितना रट्टा मार के बोर्ड निकाला है, that is not the important part। The important part is the concept that you have about electrophilic substitution, about substitution by a nucleophile, about addition reaction and so on. जहाँ पे according to me the NO2 should be here because the OH is showing a strong electron donating effect which increase the electron density at the para as well as the ortho position, but in the rest the para position will win over the ortho because of a little bit steric hindrance that will happen when the NO2 should attach at the ortho position. I hope you understand the concept. Okay, so this is the probable product that you have. अगर ऑप्शन होता, ऑप्शन में अगर ये प्रोडक्ट है, that is the final product according to my opinion. I think the concept is pretty important. Okay, the concept is queen. ये चीज हमेशा याद रखना, रट्टा मार के कुछ होने नहीं वाला है, एक स्टेज तक तुम जाओगे उसके बाद कुछ नहीं होगा। Okay, and that is the beauty of these kind of competitive exams. Okay, तो यही चीज था about the electrophilic substitution into this phenol derivative compound, into this phenol derivative compound. I hope you understand the concept. Okay, तो जाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। Again a beautiful question. जो भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन यहाँ पे जितना मैंने लिया है अबाउट 5 to 6 क्वेश्चंस, और पिछले वाले पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन किया था, दोज आर द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 25 में अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन मैंने ही डिस्कस किया है, और कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है बिकॉज दोज आर द आई थिंक दैट नॉट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्फॉर्मेटिव था। अगर तुम्हें पता है तो होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। जैसे मान लो बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन, आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी मतलब बायोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर का क्वेश्चन, वो अगर तुम्हें पता है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। बेसिक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना। ओके, नहीं तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन तुम गूगल में जाके भी पा सकते हो। ओके, सो देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज अबाउट टू simultaneous reaction where the bromine is going to be substituted by OH, and the second case the bromine is going to be eliminated by OH. The difference is here the alcoholic OH, here the aqueous NaOH, that's why it is a nucleophilic substitution and this is an elimination. Okay, so there are some statements जिसके accordingly तुमने बोलना है which is the correct one. Find out the correct one. ये जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिया है ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना उसमें थोड़ा, ठीक है, बिकॉज एग्जैक्ट ऑप्शन मुझे मेरे सोर्स ने मुझे नहीं दिया है। सो रिगार्डिंग दैट थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो चीज़ थोड़ा देख लेना। बट द क्वेश्चन फॉर्मेट इज दिस। ओके, इट इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट। तो जो भी है यहाँ पे हेलो ब्रोमीन दिया गया है, मतलब एक हेलो एल्केन्स तुम्हारे पास है, वो हेलो एल्केन्स के साथ दो रिएक्शन हो रहा है, एक हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हो रहा है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन के बारे में पहले बात करते हैं बाय न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे जो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा वाला कार्बन है? दैट इज अ 3 डिग्री कार्बन। एंड व्हेन यू हैव द सब्स्टिट्यूशन इन द 3 डिग्री कार्बन,
the thing that it will go into a SN1 reaction which carried out in 2 steps. यहाँ पे 1 क्यों बोला जा रहा है? The 1 is coming for the order, that is 1, that is the rate of the reaction is only proportional to the haloalkane, that is जो 3 degree alkane है तुम्हारे पास. It is not dependent over the nucleophilic strength. न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसके ऊपर ये चीज डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इन द स्लो स्टेप द ओनली मॉलिक्यूल दैट इज पार्टिसिपेटिंग इज द हेलो alkane, and in the first step the nucleophile is involved, so that's why we will not take the nucleophilic strength or the nucleophile concentration in the rate of the reaction. उसीलिए यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो होगा 1. और दूसरा वाला चीज के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसको थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं, समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा. चलो इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं. So you have a alcoholic OH minus where the nucleophile is acting as a base. When it is acting as a base, regarding this is the alpha carbon, these are the 2 beta, sorry these are the 3 betas. जो पे मैंने एक ही बीटा ले रहा हूँ because सब दिखने में एक ही तरह है, तो अलग कुछ नहीं होगा, एक ही होगा. Okay, that is the product that we have. Now the question is, when you have the elimination, and this is the elimination in most of the cases, यहाँ पे ब्रोमीन है तुम्हारे पास, ये E2 में भी जा सकता है, ये E1 में भी जा सकता है, but according to my opinion it will go towards the E1 mechanism. Why? Because यहाँ पे E1 के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इनवर्स नहीं है, okay, that is the E1, because this process will carried out into 2-step process, because ये भी पहले ऐसे स्लो स्टेप में एक कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, then the OH minus will abstract the beta hydrogen, that is this hydrogen, and then we have the product जो कुछ दिखने में ऐसा है. E2 में क्या होता है, एक ही स्टेप में हेलोएल्केन और OH माइनस दो ही इन्वॉल्व होता है. यहाँ पे जस्ट लाइक SN1 हेलोएल्केन ही इन्वॉल्व होता है इन द स्लो स्टेप, एंड दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज E1. सो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो भी सेम होगा, दैट इज R इज प्रोपोर्शनल टू हेलोएल्केन. Okay, and when is R is proportional to the haloalkane, it's a very interesting thing to understand that OH माइनस के ऊपर ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड ही नहीं कर रहा है. अगर OH माइनस के ऊपर ये दोनों रिएक्शन में ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली रेट में वो चीज़ नहीं आएगा और वो वाला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा. यहाँ पे ये चीज़ मैं क्यों सिक्योर कर रहा हूँ तुम्हें, बिकॉज ये 3 डिग्री ग्रुप्स है. फॉर द 3 डिग्री ग्रुप्स इट विल गो टूवर्ड्स कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, देन इट विल गो टूवर्ड्स द एलिमिनेशन. दैट्स व्हाई according to me this should processed over the E1 mechanism. ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली कौन सा वाला प्रोसेस आएगा, देखो कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, लिखा हुआ है रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ 1 रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस. यहाँ पे ये ऑप्शन मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है. रिएक्शन नंबर 2 रिमेन अनचेंज्ड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीजेस, बिकॉज दोनों ही है तो एक को नहीं लेके तुम बता नहीं सकते, एक को लेके तुम यहाँ पे बता नहीं सकते. फॉर द रेट ऑफ द बोथ रिएक्शन रिमेन डबल बिकम डबल इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बिकम डबल. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डबल हो जाएगा जब तुम रेट ऑफ द रिएक्शन तुम्हारा डबल हो जाएगा, तो वो तो नहीं है बिकॉज OH माइनस नहीं आ रहा है. फोर्थ वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन जहां पे लिखा हुआ है रेट ऑफ द बोथ रिएक्शन डोंट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, बिकॉज in the rate reaction that is R is proportional to only the CBr, that is the haloalkane group, not over the OH minus. That's why it doesn't depend on the concentration of OH minus in both cases, in elimination as well as substitution, because this is SN1 and this is E1. Okay, again a very good conceptual question that you have. JEE Mains का यही ब्यूटी है जहाँ पे कॉन्सेप्ट को जज किया जाता है. काइनेटिक्स और ऑर्गेनिक दोनों का सम अप ये क्वेश्चन है. ओके, अगर कोई भी लगे कि सर ये E2 में होने वाला था, आपने E1 क्यों बताया, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. आई विल रिप्लाई इंडिविजुअल वन फॉर योर इंडिविजुअल क्वेरीज.
Okay, so we will go for the question number 6 for the next question. ये होने के बाद, ये 5 क्वेश्चन होने के बाद, now we will have a physical question जो भी ऑर्गेनिक से ही है more or less. ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन जो रिएक्शन यहाँ पे लगेगा वो प्योर ऑर्गेनिक का रिएक्शन है. क्या रिएक्शन है? द कॉम्बशन ऑफ इथेनॉल इज हैपनिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पे हीट ऑफ कॉम्बशन कितना आ रहा है? -327 किलो कैलोरी. यहाँ पे कैलोरी को निकालने के लिए बोला गया है कितना हीट इवॉल्व हो रहा है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑब्वियसली एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद और सब कुछ. कौन सा वाला रिएक्शन लिखेंगे? वी विल हैव दैट रिएक्शन दैट इज C2H5OH which is a liquid, oxygen gas, then we have carbon dioxide as a gas, और वाटर को यहाँ पे लिक्विड लिखेंगे या सॉलिड? मैं बोलूंगा लिक्विड. क्यों? यहाँ पे टेम्परेचर देखो 27 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, that's why it should be recommended as a liquid. So we have to balance that part. यहाँ पे कितना है? 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार्बन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तो 2 यहाँ पे बिठाना ही पड़ेगा. ओके, सो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 3 बिठाना पड़ेगा. सो द नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट यू हैव 3 + 2, 3 + 4 दैट इज 7. यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 बिठाना पड़ेगा. सो द बैलेंस इज समथिंग लुकिंग लाइक दिस. ओके, अभी जो फॉर्मूला हम लोग के पास लगेगा वो कुछ ऐसा है: ΔG - ΔU इक्वल टू ΔNGRT. बोलोगे सर यहाँ पे ΔH तो ΔU लिखा नहीं है, बिकॉज एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी इसके बारे में तो बोला नहीं गया है. आप कैसे बता रहे हैं? मैं ऐसे कुछ बता रहा हूँ. ΔG को प्रूफ किया जाता है इन द थर्मोडायनामिक्स. After having the thermodynamic first law, there is ΔG equal to QP and also ΔU equal to QV, that is heat measuring for that specific system at constant pressure, the measurement of heat at constant volume. तो ये चीज़ को ऐसे भी तुम लिख सकते हो, QP - QV is equal to ΔNGRT. अभी बोलोगे सर ΔNG कैसे निकालना है? ΔNG को बारे में, अगर ΔNG के बारे में बोलूँ तो ये कुछ दिखने में ऐसा है कि समेशन ऑफ प्रोडक्ट मोल नंबर माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट मोल नंबर, इन दोनों का. ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट का मोल नंबर कितना है? प्रोडक्ट का मोल नंबर यहाँ पे लिखूंगा 2, और रिएक्टेंट का कितना लिखूंगा? 3. सर बोलोगे कि ये वाला 3 और ये वाला 1 क्यों नहीं लिखा आपने? बिकॉज दे आर बिलोंग टू द लिक्विड स्टेट. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सफिक्स में G लिखा हुआ है. G का मतलब क्या है? गैस. तो हम लोग कौन सा वाला लेंगे? खाली लिक्विड वाला. तो ये कितना आएगा? ये आएगा -1. इट विल बिकम -1. तो अगर ये -1 आ रहा है तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या आएगा? तुम्हारा फॉर्मूला में QP तुम्हें दिया गया है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर में मेजरमेंट है. चलो 327 × 10³ कैलोरी तुम्हें दिया गया है. R का वैल्यू यहाँ पे कैलोरी है तो 1.98 आएगा यहाँ पे, बिकॉज कैलोरी में तुम्हें बिठाना है मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, and you have a value of T which is something looking like 300 Kelvin. I hope you understand. Okay, 300 Kelvin. So everything is there. R का वैल्यू तुम्हें याद रखना है. R का 4 वैल्यू होता है. 1 is 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, 1 is 8.314 10⁻⁷ R मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, and 1 is 1.98 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, and 1 is 0.082 लीटर एटमोस्फियर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. तुम्हें याद रखना है कि कौन सा वाला पोर्शन में, मतलब इक्वेशन क्या डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली R का वैल्यू तुम्हें पुट करना है. जैसे यहाँ पे कैलोरी डिमांड कर रहा है इक्वेशन. सो द पार्ट इज समथिंग रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. क्यू भी तुम्हें निकालना है बिकॉज बोला गया है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. सो क्यू वी इज समथिंग रिप्रेजेंटेड एज QP - ΔNGRT. ओके, QP का वैल्यू कितना है? QP का वैल्यू है -327 × 10³. ΔNG का वैल्यू कितना है? ΔNG का वैल्यू है -1. यहाँ पे लिखूंगा 1.98 × 300. ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा शॉर्टकट में आता हूँ मैं. ये शॉर्टकट में करके ये जो चीज़ आएगा ये +600 आएगा. ये इसको 2 में अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 2. ओके, एंड देन वी हैव द टर्म जहाँ पे 327,000 + 600 कितना आएगा?
ये वैल्यू कुछ आएगा -326,400 कैलोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर किलो कैलोरी में करना है तो -326.4 किलो कैलोरी। ओके, अगर किलो कैलोरी में करना है आंसर तो कितना आएगा आंसर? आंसर आएगा -326.4 किलो कैलोरी। ये अलग है, इसको इसमें मत ले लेना, ठीक है, ये अलग है। दिस इज द आंसर दैट यू हैव, तो इसको ये साइड में मत ले लेना, ये अलग है, ठीक है। -326.4 किलो कैलोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये था फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का एंथैल्पी वाला पोर्शन का क्वेश्चन। दैट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, यहाँ से क्वेश्चन। तो इसके लिए ये दोनों इक्वेशन को अच्छे से याद रखना है। Okay, these are the two equation that is very important, और obviously you have to know the balance equation जिसके accordingly the every calculation will be done, जैसे मैंने यहाँ पे करा है। और ये फिजिकल स्टेट लिखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज द डेल्टा जी वैल्यू, डेल्टा एन जी वैल्यू इन शुड बी इन एरर डेटा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम अबाउट थर्मोडायनामिक्स। तो और एक प्रॉब्लम है थर्मोडायनामिक्स का, सॉरी, और एक प्रॉब्लम है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसको लेके हम लोग ये लेक्चर खत्म करने वाले हैं। ओके, अगर ज़्यादा लंबा लग रहा है तो जैसे मैं बताता हूँ पॉज करके देखो, बिकॉज आई डोंट वांट टू इंटरप्ट माय कॉन्सेप्ट, बिकॉज अगर इंटरप्ट करके मैं वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा ये ट्रिकी लगेगा, इसलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट को करके जितना भी हो सकता है मैं उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो गो फॉर द नेक्स्ट and the last question about physical chemistry. That's a pretty interesting question about Einstein photoelectric effect. What is that point? The point explained, a metal which has a work function of 4.41 10 to the power minus 19 joule is subjected to a light of a wavelength of 300 nanometer, and then maximum kinetic energy of the photo emitted light is, तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकाला है, बाकी प्लैंक्स कांस्टेंट और जो लाइट वेलोसिटी है वो वैल्यू तुम्हें दिया गया है। नाउ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव पार्ट इन साइंस, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी को पढ़ाने में भी और खुद समझने में भी। तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो इक्वेशन है ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत ही सिंपल एक इक्वेशन है जो दिखने में कुछ ऐसा है, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे ये हाफ एम वी स्क्वायर जो मैं लिख रहा हूँ इसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ओके, एच न्यू नॉट को बोला जाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है? वर्क फंक्शन का मतलब है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू रिक्वायर टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू रिक्वायर। तो वर्क फंक्शन का वैल्यू अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए, सॉरी, अलग अलग मेटल सरफेस के लिए अलग अलग आता है, बिकॉज सबका जो बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के साथ वो सेम नहीं है। तो जिसका ज़्यादा है उसके लिए वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, जिसका बाइंडिंग एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो निकलेगा कम है, उसका वर्क फंक्शन कम होगा। और ये इंटायरली डिपेंड करता है न्यूक्लियस के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन है उसके ऊपर। ओके, ज़्यादा है या कम है। And the next thing that we have the light source that you are using, ये तुम्हारे ऊपर है कि कौन सा वाला फ्रीक्वेंसी, कौन सा वाला वेवलेंथ का तुम लाइट सोर्स यहाँ पे यूज कर रहे हो। जैसे यहाँ पे वेवलेंथ 300 नैनोमीटर का एक लाइट सोर्स यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग करके मैं लिख रहा हूँ फाई नॉट, दैट इज समथिंग कॉल्ड वर्क फंक्शन। ओके, जिसका वैल्यू है यहाँ पे लिखा गया है 4.41। फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा पहले डेटा लिखो कि क्या कौन सा वाला डेटा, कौन सा डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल है विद देयर स्पेसिफाइड यूनिट। फिजिक्स के साथ भी यही करो। बहुत सारे लोगों को फिजिक्स का प्रॉब्लम होता है कि सर समझ में नहीं आता कैसे एप्लीकेशन करे। तुम क्वेश्चन को पहले शॉर्ट करो। कैसे शॉर्ट करो? ऐसे करके डेटा को इकट्ठा करो, असेंबल दोज डेटा दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन, देन उसके बाद एप्लीकेशन सोचो कि ये डेटा से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसके लिए तुम डायग्राम ही ड्रॉ कर सकते हो, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम जो तुम्हें ही पता होना चाहिए, मतलब वो तुम अगर समझ पाओ दैट इज एनफ, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है।
ओके जैसे मैं करता था, मैं एक हाइपोथेटिकल डायग्राम ड्रॉ करता था, कोई फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है या मोशन का प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता था, उसके अकॉर्डिंगली मैं वो चीज़ करना चाहता था, करने की कोशिश करता था व्हेन आई हैव दोज काइंड ऑफ डेटास। इसलिए मैं यहाँ पे डेटा सब इकट्ठा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ई का वैल्यू है दैट इज द रेडिएटेड लाइट, दैट इज समथिंग एच सी बाई लैम्डा, उसका वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, क्या आ रहा है 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा 8 लिखूंगा, बिकॉज ये जूल में बिठाया है मैंने, दैट इज जूल। ये भी आएगा, और सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे जूल सेकेंड होता, दैट इज माई मिस्टेक, द यूनिट शुड बी जूल सेकेंड, ओके, अदरवाइज शुड नॉट बी मैच्ड। तो ये जो यहाँ पे यूनिट होगा प्लैंक कांस्टेंट का, वो जूल सेकेंड होगा। और नीचे क्या आएगा लैम्डा, लैम्डा कितना है 300 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर के कैसे कन्वर्ट करें, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर माइनस 9। ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर, ओके। तो यहाँ पे देखो ये मीटर पर सेकेंड है, ये जूल सेकेंड है, और ये क्या है, ये है मीटर। तो यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल हो रहा है, सेकंड सेकंड कैंसिल हो रहा है, क्या रह रहा है खाली जूल, ओके। तो यहाँ पे इसको पहले थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। सो पहले 3 से 100 यहाँ पे उड़ा देते हैं, 3 से 300 उड़ा देते हैं, 100 आ रहा है। सो 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9, ये कितना आएगा 10 टू दी पावर माइनस 7। अभी माइनस 7 को ऊपर जब निकालोगे तो कितना आएगा, आएगा 10 टू दी पावर 7, करेक्ट। 10 टू दी पावर 7 के साथ 10 टू दी पावर 8 है यहाँ पे, और 10 टू दी पावर माइनस 34 है यहाँ पे, और जो था पहले भी वही है 6.626। बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि सर इतना बड़ा डेटा है, इतना बड़ा डेटा के लिए तो कैलकुलेटर की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली ये लोग कोई क्वेश्चन सेट करते हैं, बिकॉज कैलकुलेटर के लिए अगर सेट करते हैं तो सभी लोग कर नहीं पाते, ठीक है। तो अच्छे से देखो कैसे मैं ये चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ। सो इट विल बिकम 18 प्लस 7 दैट इज बिकम 15। 15 के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, 8 प्लस 7 सॉरी 15। 15 के अकॉर्डिंगली अगर 25 को 34 को देखोगे तो कितना आएगा 34 का, 34 का आएगा 15 34, 34 मीन्स इट विल बिकम माइनस 19, ओके। 15 प्लस ये, उसके अकॉर्डिंगली इसको 21 में कन्वर्ट करना है, बिकॉज आंसर 21 में दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको जो करेंगे वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 टू दी पावर माइनस 19 जो हमारा आ रहा है। नाउ इट इज समथिंग 10 टू दी पावर माइनस 21। तो क्या करेंगे इसको, देखो 6.626 10 स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 टू दी पावर माइनस 2 भी यहाँ पे लाएंगे, ओके, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, यूनिट है जूल में। तो 10 स्क्वायर के साथ अगर तुम 6.6 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 662.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। उसके अकॉर्डिंगली कितना आएगा 662.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 जूल। इसको मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो 10 टू द पावर माइनस 21 में निकालने को बोला गया है, ओके। Now we have to find out the work function, that is psi naught, वो है 4.41 10 to the power माइनस 19। इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, इसको 441 करेंगे इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 सॉरी इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल, जिसके अकॉर्डिंगली ये आएगा 441 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 21 जूल, ओके। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग करेंगे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, दैट इज समथिंग रिप्रेजेंटेड एज दिस वर्क फंक्शन, मतलब जो रेडिएटेड एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द वर्क फंक्शन। अगर तुम इसको माइनस करोगे तो ही तुम्हारा एनर्जी निकल जाएगा, मतलब एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्या आ रहा है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट में आ रहा है 662.6 10 टू द पावर माइनस 21 माइनस 441 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 21 जूल। इसको तुम माइनस करोगे तो क्या आएगा, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 21 ऑब्वियसली होगा, और कितना होगा, और होगा यहाँ पे 21.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 21 जूल। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन,
तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में जो बिठेगा, जिन लोगों ने भी बिठाया था 21.6, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट नया आया है, न्यूमेरिकल टाइप। ओके, ये चीज़ कि में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जस्ट यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स पोर्शन। क्या आ रहा है, वो लोग कुछ रेंज बिठाते हैं इसका, कि मान लो किसी का 21 से 22 में रेंज बिठाते हैं। जिन लोगों का भी इनके अंदर आया है रिजल्ट, मतलब लिखा है रिजल्ट, उन लोगों का करेक्ट है। ओके, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो जो भी है, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैथ फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फॉर्मूला बहुत ईजी है, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, बट कैलकुलेशन थोड़ा धीरे करना है। अगर धीरे करते हो तो आई थिंक it is not that much tough to understand. Okay, so I hope you understand this numerical from the physical chemistry photoelectric effect portion, and this is the part of the part 2 JEE Mains 2nd September 2020 आफ्टरनून सेशन पोर्शन। ये हो गया सारा, और कुछ मैं बोलना नहीं चाहता, ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग JEE Mains का अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वी विल गो टू द 3rd September और द 4th September पोर्शन, देखते हैं क्या होता है। उसके साथ साथ सॉलिड स्टेट का जो पोर्शन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो भी वीडियो आएगा 2-3 दिन में ही। ओके, ये वीडियो अपलोड होने के बाद ही 2-3 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगा। रेगुलरली चैनल अपडेट हो रहा है, और फेसबुक पेज जो है वो फेसबुक पेज को फॉलो करो, बिकॉज रेगुलरली वहाँ पे क्वेश्चन आंसर अपलोड होगा। ओके, इन द रेगुलर फॉर्मेट, इन द रेगुलर बेसिस उसको अटेंड करने की कोशिश करो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जो भी आंसर तुम्हें सही लगता है फॉर दैट टाइप ऑफ पोर्शन। एंड ऑब्वियसली जो मैंने बताया, एग्जाम अपडेट एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉग्स फॉर द साइंटिफिक, जो ब्लॉग्स होता है, जो रिसर्च के ऊपर होता है, जो टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है, वो भी चीज़ हम लोग उसमें लाने वाले हैं। सो फॉलो आवर फेसबुक पेज, लाइक करो उसको, और ये जो वीडियो मैंने बनाया है, सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज़ B.Chemistry, और लाइक करो। अगर अच्छा लगा है तो शेयर विथ योर रूममेट्स, शेयर विथ योर जूनियर्स, शेयर विथ योर क्लासमेट्स, एंड दैट इज़ एनफ। और अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें लग रहा है कि ये सही नहीं है, ये कुछ और भी हो सकता था, सो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, गो फॉर दैट पार्ट। ओके, सो सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज़ B.Chemistry। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, stay safe, stay happy. Thank you for your precious time. Thank you.